Good morning everyone. So in the last session we have completed till question number 7 of exercise 5.1. Now let's start from question number 8. Question number 8 is an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? Now first of all, here the given angle is greater than 45 degree. Given angle is equal to given angle greater than 45 डिग्री मीन्स 45 डिग्री से बड़ा है. अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 माइनस गिवन एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल is equal to 90 degree minus given angle. Okay, now this angle is greater than 45 degree. It means either it is 50 degree or more than 50. Okay, it can be anything. 45 डिग्री से बड़ा है. अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो हमको ऐसा पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये 45 डिग्री से बड़ा है. सपोज हम ले लेते हैं ये 50 डिग्रीज. ओके, ये 50 डिग्रीज मैंने ले लिया. अब मुझे गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा? 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो दैट इज 40 डिग्री. नाउ 40 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री. ओके, 40 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री. So obviously the complementary angle will be lesser than 45 degree. So the answer is complementary angle is less than 45 degree. Then question number 9. For that we need a figure. Okay, so let me draw a figure. Then only this question will be understood. This kind of figure it is. 1 2 3 4 5. 1, this is 2 3 4 and angle 5. Okay, here it is A, then B, here C, D, E, and this point is O. Okay, yes. In the adjoining figure means in this figure is angle 1 adjacent to angle 2. Angle 1 means this angle and angle 2 means this one. Angle 1 is adjacent to angle 2. मैंने पहले बोला था angle 1 और angle 2 means कोई भी angles में adjacent angles के लिए conditions क्या क्या है? Common vertex होना चाहिए, common arm होना चाहिए और बाकी के दोनों arms opposite direction, different directions में जाने चाहिए. तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन वर्टेक्स है. यस, कॉमन आर्म भी है उसका और बाकी के दोनों आर्म्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो यस, दिस एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सेकेंड, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? AOC और AOE. ओके, AOC और AOE इसमें एक एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं? तो नो. क्यों? बिकॉज AOC AOE कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, कॉमन आर्म नहीं आएगा. यस, और बाकी के दोनों आर्म्स भी कॉमन आर्म भी ये वाला हम मान लेते, चलो कॉमन आर्म भी मिल गया, लेकिन बाकी के दोनों आर्म्स हमको डिफरेंट मीन्स यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. So no, these two angles are not adjacent angles. Third is, do angle COE and angle EOD form a linear pair? COE and EOD COE and EOD. Okay, so these two angles form a linear pair. Linear pair का condition क्या है कि वो दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्रीज. सो यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये जो दो एंगल्स दिए हैं वो दो एंगल्स मिलकर 180 डिग्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है. नाउ यू आर कंफ्यूज दैट द मेजरमेंट्स आर नॉट गिवन. देन हाउ कैन वी चेक दैट is this a straight angle or not?
Yes. So first of all, by just watching the line only, we can see that the total of the two angles is a straight angle or not. Why? Because if this line is a straight line, means 180 degrees, so these two angles will add up to 180 degrees. So angle COE and EOD are forming a linear pair. Yes. Third number. Fourth, आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल की भी वही कंडीशन है कि 180 डिग्रीज होना चाहिए. बी ओ डी एंड डी ओ ए, बी ओ डी डी ओ ए. अब ये दोनों मिला मतलब एंगल 4 एंड एंगल 5. 4 एंड 5 को मिला के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है. सो यस, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो यस दे आर सप्लीमेंट्री. फिफ्थ, is angle 1 vertically opposite to angle 4? Angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes, vertically opposite means exactly opposite होने चाहिए. दोनों के angles same, दोनों के measurement same रहे. Sixth number, what is the vertically opposite angle of angle 5? Angle 5 का vertically opposite angle कौन सा है? तो angle 5 का vertically opposite 2 या तो 3, ऐसे हम कोई भी एक एंगल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल 5 इतना बड़ा है और इसके सामने वाला इतना होना चाहिए. सो COB, एंगल COB इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फर्स्ट, indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pairs. First of all, I need to draw a figure. Question number 10 का फिगर मैं बना देती हूँ. ये यहाँ पे ओके, फिर ऐसे लाइन आएगा और ये लाइन ऐसे जाना है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and this is angle 5. ओके, इसमें हमको पेयर्स बताने हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं और लीनियर पेयर कहाँ पे बन रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्टिकली ऑपोजिट मींस एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने होना चाहिए, सेम मेजरमेंट होना चाहिए. ओके, दैट आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट. सो हियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट कौन से एंगल 1 एंड एंगल 4. एंगल 1 एंड एंगल 4 और एंगल 5 और उसके सामने कौन सा आ जाएगा 2 एंड 3. एंगल 5 एंड एंगल 2 एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बाद हमको सेकेंड पूछा है लीनियर पेयर्स. सेकेंड इज लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर्स का मतलब क्या है कि वो एंगल्स ऐसे होने चाहिए कि जिसका एडिशन करोगे तो आंसर 180 डिग्रीज. मीन्स जितने भी स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीनियर पेयर्स कहाँ पे है. ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो मतलब एंगल 1 एंड एंगल 5 इज अ लीनियर पेयर. एंगल 1 एंड एंगल 5 इज अ लीनियर पेयर. उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन मीन्स एंगल 1 2 एंड 3, दिस 3 आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. Angle 1, angle 2 and angle 3. Any other straight line is possible? No. Here this line is given but the other half is not given. Okay. So only these pairs are possible for linear pair. Angle 1, 2 and 3 and angle 1 and angle 5. These are forming a linear pair. It means if angle 1 is given then we can find angle 5 and if angle 5 is given then we can find out the measure of angle 1. Same way for this 3, if 2 angles are given then we can find out the remaining angle. Question number 11. In the following figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Give reason.
So here in the question number 11, is in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2? Angle 1 और angle 2 adjacent angles है कि नहीं है? First of all, angle 1 is this angle and angle 2 means this. Adjacent angles की conditions हमको पता है कि common vertex, common arm and other two arms are the different direction. First of all, इसके vertex यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ से 1, 2 और 3, तो यहाँ पे common vertex हमको नहीं मिल रहा है. So no, angle 1 and angle 2 are not adjacent angles as they are not sharing the common vertex. Okay, so common vertex share नहीं कर रहे हैं तो वो दोनों angles adjacent नहीं है. Now one more thing, question number 10 में. Question number 10 में जैसे हमने linear pairs में लिखा 1 and 5, these are forming linear pair, and second pair 1, 2 and 3. In other direction we can see angle 4 and angle 5 are also making linear pair. Okay, so instead of writing angle 1, 2 and 3, let's write angle 4 and angle 5. Angle 4 and 5 are forming a linear pair. Because linear pair में हमारे पास कोई भी दो एंगल्स होंगे कि जिसका एडिशन करेंगे तो उसका सम क्या आ जाएगा 180 डिग्रीज. सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 11, 8 से लेके 11 तक हमने खत्म किया. क्वेश्चन 12, 13, 14 अब बाकी है ये एक्सरसाइज में. सो क्वेश्चन 8 में क्या देखा हमने कि कोई भी एक एंगल दिया होगा दैट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. ग्रेटर देन 45 मीन्स 46, 47, 48 कोई भी हो सकता है. 50 जैसे मैंने 50 डिग्री ले लिया है. ओके, अगर मैं यहाँ पे 46 डिग्री ले रही हूँ तो भी मुझे आंसर जो है वो यहाँ पे लेस देन 45 ही मिलेगा. यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंडीशन हमको पता है कि दो एंगल्स का एडिशन करेंगे, सम विल बी 90 डिग्रीज. सो 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, so that is 40 degree. 40 degree is less than 45 degree. So the answer is, if the angle is greater than 45 degree, then the complementary angle will be less than 45 degree. Question number 9 में फिगर दिया था, उसके आंसर्स हमने चेक किया कि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स दोनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लीनियर पेयर पॉसिबल है कि नहीं है, वो जो भी पूछा था वो आंसर्स हमने. क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर दिया है, उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स ये दोनों बताने हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हमने लिया 1 and 4 एंड हियर इन द सेकेंड पेयर 5 और उसके सामने आएगा 2 and 3 मीन्स 2 + 3. ओके, लीनियर पेयर में है एंगल 1 and एंगल 5 एंड एंगल 4 and एंगल 5. क्वेश्चन नंबर 11, एंगल 1 and एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स और नॉट. So no, they are not adjacent angles because they are not sharing the common vertex. So here question number 11 तक खत्म हुआ. In the next session we will start from question number 12.